Okay, so good morning everyone. This is the lecture of CAM as you know, and in the last lecture we have discussed different types levels of automation, at which level the automation is required. So it depends upon the budget you have and your wish to just having at the level of automation you want in your industry. In this lecture, as we always interested to increase the productivity or output of our industry or of output, so we will be discussing the strategies that are required to increase the production or you can say productivity of the auto industry in an industry while manufacturing a product. So these are some strategies that we generally adopt. You can write your own studies also, but the most of the studies that we can consider in this case are: first one, the specialization in operation. This one we have discussed already, I think. And मार्केट नहीं चल रहा है, एक मिनट वेट करना, जस्ट वेट. Okay, so first one is specialization of operation. I have discussed this in detail in the last lecture. Second, combining of operations. This is also we have discussed. Combining operations means whenever we are manufacturing a product, a complex product, and that complex product requires a number of operations to be performed on that product, then our motto is to just use that machine which can perform a number of operations. Okay? So like we are saying, we are going to produce a product requiring drilling, turning and some other operation, then we will be using that machine that can perform these more than one operation. So we are not interested to just move your product to one machine to another machine. We are interested to manufacture our product on the single machine. So combining operation means we will be selecting a machine that can perform more than one operation on a product. Second, performing simultaneous operation. Obviously we have already discussed in the last lecture that whenever let us assuming that we are producing a product that requires let us 6 operations. So in that case we can perform more than 2 operations simultaneously. Like if we are having some जैसे मैं बता देता हूँ आप लोग. जैसे मान लिया कि in the last lecture we have discussed let we are having a food and want to watch TV, then while watching TV we can eat, we will be having a dinner at that time. So simultaneously we can do more than one operation, more than 2. So this is what we can do, the simultaneous operation. More than one operations can be performed simultaneously. Next, integration of machine tools. Obviously integration of machine tools means we will be just combining a number of machine tools at a single place, as in the case of manufacturing cells we have discussed in the previous lectures. So manufacturing, so this is what we are saying, the concept of manufacturing cell. Increase in flexibility. Flexibility means to manufacture the product of varying quantity and varying quality. So this is what we are saying. Sometimes we require to produce component in large amount with small quality, and sometimes we want to produce a product with high quality and less volume. So this is we can use those machines having flexibility in the manufacturing. So sometimes we use a system FMS, flexible manufacturing system. You will discuss this term in detail in the next units. Using better material handling system and storage system. Sometimes we will be consider that we are manufacturing a product, and that product we have to just pass from one machine to another machine to so one machine to first say second to third to fourth machine. So whenever we are passing a workpiece or product from one machine to another machine,
for getting it finished or getting it in the final shape, then what we are doing, we are passing the product. So we want to just better material handling and storage system. So while passing a product from one machine to another machine, we will be using some material handling system like some AGVs, automated guided vehicles, robots. So that robots or AGVs will keep up the product from one machine and just put on the second machine, so that all these operations will be performed in the better way. Online inspection means while producing a product, our aim is to just check the quality of the product at the last. So this is not the online inspection. Online inspection means whenever a product is being manufacturing from one machine to another machine to third to second, so third to fourth machine, each process we have to check the quality of that product. Okay? No, without checking the quality at the last, we have to check the quality of the product on every process. हर एक प्रोसेस पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना है, ऐसा नहीं है कि लास्ट में चेक करना है प्रोडक्ट की क्वालिटी को. So we have to maintain the efforts should be made to check the quality of the product or just inspect the product in each manufacturing process. Eighth one is the optimization and process control. So optimization means you maintain the process in an effective way. Okay, so each individual processes or manufacturing processes should be performed in the efficient way, ठीक है, but in a balanced manner. Like मान लिया कि a product is manufacturing by there are 3 processes to manufacture a product. पहला प्रोसेस 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर प्रोसेस 3 होगा. 3 प्रोसेस है हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए. एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस. आपका प्रोडक्ट आएगा, पहली प्रोसेस में आएगा, कुछ प्रोसेसेस होंगी यहाँ पर, फिर वो दूसरी प्रोसेस में जाएगा, फिर तीसरी प्रोसेस में जाएगा. तो मान लिया कि हमने पहली प्रोसेस को बहुत ज़्यादा हाईली क्या कर दिया, उसको हाईली एफिशिएंट कर दिया, तो बाद वाली 2 को क्यों नहीं किया, ठीक है. या मान लिया सेकंड प्रोसेस को हाईली एफिशिएंट कर दिया, पहली वाली को क्यों नहीं किया. तो हमारा मतलब ये है कि बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करना है. ये नहीं कि एक प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं. हमें सारी प्रोसेसेस को बैलेंस करके चलना है. जैसे मान लिया कि भाई एक पर्सन है, उसके पास मान लिया 1 करोड़ रुपए थे, उसने क्या किया, सारा पैसा जो था वो मकान में लगा दिया. खाओगे क्या, अगर घूमने जाना तो क्या करोगे. तो हमें ये नहीं करना है, हमें सारे प्रोसेस को बैलेंस करके चलना है, ठीक है. दैट इज द रिक्वायर्ड थिंग. नेक्स्ट, प्लांट ऑपरेशन कंट्रोल. तो प्लांट में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उन सारे ऑपरेशंस को एक इफेक्टिव वे में, ऑर्डरली वे में अरेंज करना, और दूसरा कंट्रोलिंग करना. एंड लास्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और ऑल द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस. सो इसको बोलते हैं सिम. ये आपको डिटेल में लास्ट में पढ़ेंगे. दैट इज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग. कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मैन्युफैक्चरिंग के किसी भी कंपोनेंट, व्हेनेवर यू आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, एट ईच लेवल यू आर यूजिंग द कंप्यूटर. चाहे वो डिजाइनिंग हो, प्रोडक्ट की डिजाइन कर रहे हो, स्टिल यू आर यूजिंग कंप्यूटर. मैन्युफैक्चरिंग हो, यू आर यूजिंग कंप्यूटर. मटेरियल हैंडलिंग हो, यू आर यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है. बिजनेस रिलेटेड फंक्शन, यू आर यूजिंग कंप्यूटर. सो व्हेन एट ईच लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, गुड मॉर्निंग, कोई भी लेवल हो, कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी प्रोसेस हो, अगर आप हर एक लेवल पे कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी प्रोसेस में आपने कंप्यूटर को इंटीग्रेट कर दिया है, अगर ऐसा कर रहे हैं, दिस विल श्योरली एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम. सो दीज आर द 10 पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये सारे पॉइंट्स हमको याद करने हैं. इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं. You can write those points also. So this is what we have discussed is strategies in automation. Now next moving, because you always heard about a term CNC. CNC मशीन के बारे में सुनते रहते हो कि भाई सर CNC क्या है और what is the. तो CNC is a numerical. पहले CNC से पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ठीक है. न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं उसमें अगर आप कंप्यूटर का यूज करेंगे तो वो CNC बन जाता है. बट बिफोर दैट वी हैव टू कंसीडर व्हाट इज NC सिस्टम और व्हाट इज न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम. तो न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें देनी होती है उनको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ
codes, that codes when are arranged in a particular manner, those codes when are arranged in a particular manner, they will be having some special function. Okay, so what is numerical control? Numerical control machine tools are generally defined as method of programmable automation. So it is a programmable automation. तो जब भी आपसे पूछा जाए in which category does CNC machine falls, then you will be considering programmable automation. Okay, so in which various functions of machine tools are controlled by numbers, letters and some symbols. So what is this? Numerical control system. It is a type of programmable automation in which various functions of the machine tools, various functions of the machines are controlled by using the numbers, letters or some specific symbols arranged in a particular order. Okay, so this is what we are saying is numerical control system. numerical control system में हम क्या करते हैं कि जो मशीन टूल्स हमारे, पहली बात तो ये है, पहला पॉइंट इसमें आपको ये लिखना है कि ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का पार्ट है. ठीक है, ये एक मेथड है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का, न्यूमेरिकल कंट्रोल. इट इज अ मेथड ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इन विच जो भी मशीन्स होती हैं, मशीन टूल्स होते हैं, उन मशीन टूल्स के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस को हम नंबर्स की हेल्प से, लेटर की हेल्प से या कुछ स्पेशल सिंबल्स की हेल्प से कंट्रोल करते हैं. ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आप लिखोगे द नंबर्स, लेटर्स एंड सिंबल्स आर इनकोडेड इन एप्रोप्रिएट फॉर्म, मीन्स व्हेन आर अरेंज्ड इन अ एप्रोप्रिएट सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड ए प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, कॉल्ड पार्ट प्रोग्राम फॉर द पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑल्सो. तो जब भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो हमें पार्ट प्रोग्राम बनाना पड़ता है. व्हाट इज पार्ट प्रोग्राम? व्हेन द नंबर्स, letters or symbols are arranged in a particular way or arranged in a particular or appropriate format, they will be giving a programs of instructions called part program. ठीक है, पार्ट प्रोग्राम क्या है? जब लेटर्स और सिंबल्स और जो आपके पास न्यूमेरल्स हैं, नंबर्स हैं, उनको जब आप किसी पर्टिकुलर वे में अरेंज करेंगे तो उसका एक स्पेशल मतलब होता है, उसका एक फिजिकल मीनिंग होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं. उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं हम? प्रोग्राम की फॉर्म में बना देते हैं, अरेंज कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड पार्ट प्रोग्राम. ठीक है, तो जब किसी भी अगर आपको जॉब को चेंज करना होता है, ऑपरेशन को चेंज करना होता है, देन यू विल बी चेंजिंग दी सीक्वेंस. ओके, यू विल बी चेंजिंग दी प्रोग्राम. तो सबसे पहले बात आती है पार्ट प्रोग्राम. पार्ट प्रोग्राम याद रखना है क्योंकि पार्ट प्रोग्राम आप एंड तक यूज करेंगे. ये एक स्पेशल वर्ड है. पार्ट प्रोग्राम क्या है? पार्ट प्रोग्राम इज सीक्वेंस. पार्ट प्रोग्राम इज यू कैन से when numbers, letters and symbols are arranged in a particular sequence to give some instructions to the machine tools, then it is considered as part program. ठीक है, पार्ट प्रोग्राम में क्या करते हैं? लेटर्स, सिंबल्स और नंबर को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हैं जिससे कि हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मशीन को दे सकते हैं. उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जिनको कि आपने किसी पर्टिकुलर कोड में इनकोडेड किया हुआ है, पर्टिकुलर कोड्स की हेल्प से बनाया गया है, उनको बोलते हैं पार्ट प्रोग्राम. ठीक है, पार्ट प्रोग्राम में क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आप मशीन टूल से परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो बस उनको आपने कुछ कोडिंग करके आपने बस अरेंज कर दिया. ये एक अलग डेफिनेशन है एनसी टेक्नोलॉजी की. व्हाट इज एनसी टेक्नोलॉजी? आपको बस ये लिखना है एनसी टेक्नोलॉजी की कोई भी एक डेफिनेशन है. बस एनसी मशीन्स क्या है, कोई भी एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि एनसी मशीन क्या. दीज आर एनसी कंट्रोल मशीन टूल्स आर डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन which uses numbers, symbols and some numbers, symbols and letters to in the machine tools to control its operations. बस ये सब लिख लेना है. आपको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं इसको. इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? we prepare a part program. And what is part program? Part program is a set of instructions that we are providing to the machine tools to perform the operations. And those set of instructions are just given in the form of codes, and those codes are prepared by some numbers, letters and special symbols. इतना लिखना है, खत्म. ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो. This is according to Electronics Industries Association. The NC technology is defined as a system in which
एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एट सम पॉइंट। ओके, ये भी एक डेफिनेशन है। इसके अलावा ये है एनसी मशीन्स रिस्पॉन्स टू अ सीरीज ऑफ कोड इंस्ट्रक्शंस और पार्ट प्रोग्राम बाय एक्चुएटिंग वेरियस। बहुत सारी डेफिनेशन है, आपको स्टार्ट वाली लिखनी है, दैट इज ओके। पार्ट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देना है, खत्म। ठीक है। सुटेबिलिटी ऑफ एनसी टेक्नोलॉजी, एनसी कंट्रोल, एनसी सिस्टम के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर नहीं आया तो बताओ जरा एक बार। कोई माइक आ गया ना? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भी एनसी मशीन्स के बारे में। चलिए, सुटेबिलिटी ऑफ एनसी टेक्नोलॉजी, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं? ऐसा नहीं कि हर जगह यूज करो, देयर आर सम सुटेबिलिटी, कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, वेयर इट इज फाउंड सुटेबल टू यूज। पहला देख लें, पार्ट्स आर मेड इन स्मॉल बैचेस। जब आप पार्ट्स, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो छोटे छोटे बैचेस में बन रहा है, एट दैट टाइम इट इज सुटेबल। कंपोनेंट्स, कॉम्प्लेक्स शेप के कंपोनेंट बनाने में बहुत सारे कंपोनेंट्स, a large number of operation have to be performed on the component in its machining। तो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, बहुत सारे ऑपरेशंस, मशीनिंग ऑपरेशंस आपको करने हैं, एट दैट टाइम इट इज सुटेबल टू यूज एनसी टेक्नोलॉजी। मच मैटर नीड्स टू बी रिमूव, बहुत सारा मैटर रिमूव करना है धीरे धीरे करके, वी विल बी यूजिंग। क्लोज टॉलरेंस रिक्वायर्ड, हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, इट इज बेनिफिशियल टू यूज एनसी टेक्नोलॉजी। पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन डिजाइन, possibilities of change in design, you can use this ANSI technology। Parts are crucial and expensive, जो पार्ट आपके बहुत विशेष होते हैं और साथ के साथ वो जो पार्ट्स हैं महंगे भी होते हैं, तो अगर छोटी सी मिस्टेक अगर हो गई, तो गलतियां अगर हो गई तो स्क्रैप पूरा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं। एंड फिक्चराइजेशन एंड सेटअप आर न्यूमेरिक्स एंड कॉस्टली, तो अगर फिक्सचर और जिक्स फिक्सचर यूज कर रहे हो, सेटअप अगर कॉस्टली है, then you will be using this system। So when one or more of the above consideration would justify the processing of a part using NC machine। तो जब भी इनमें से कोई भी एक suitability हो, कब जस्टिफाई करना है, ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन आपको जस्टिफाई करना है, then you will be using NC टेक्नोलॉजी। अभी हमने इसमें कंप्यूटर को यूज नहीं किया है, माश कंप्यूटर को हमने इसमें यूज नहीं किया है। अभी हम केवल न्यूमेरिकल कंट्रोल की बात करते हैं। कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल अलग है, न्यूमेरिकल कंट्रोल अलग है, ठीक है। चले, तो ये है कब कब यूज करेंगे, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि कब एनसी टेक्नोलॉजी का यूज करना है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि अभी एक सिंपल एग्जांपल दूंगा तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सोनार की दुकान है, ठीक है, ज्वेलरी शॉप है, और एक पर्सन है जो सिंपली रेडी की दुकान है, मतलब फ्रूट्स बेचता है, नॉर्मल जो तराजू है उसके पास, 2 पल्ले वाली। तो मान लिया वो अभी सेब बेच रहा है, इज सेलिंग एप्पल्स। मैंने बोला कि भाई 1 किलो सेब दे दो, 1 किलो सेब दे दिए, उसने तोल दिए। अब वो 1 किलो ना हो करके 1 किलो 5 ग्राम हो गया, मान लिया 1 kg 5 ग्राम, ठीक है, 1005 ग्राम दे दिए उसने मुझे। वो 5 ग्राम को काउंट नहीं करता, बोले कोई दिक्कत नहीं, चले जाने दो। अब मैं दोबारा से गया सोनार के पास, मैंने बोला कि भाई ऐसा करना, मुझे 10 ग्राम सोना दे दो। 10 ग्राम सोना लेने गया तो वो 10 ग्राम ही देगा, है ना। ऐसा नहीं कि अरे 5 ग्राम फालतू ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी मशीन, तो जहां आपने देखा वेइंग मेजरिंग मशीन, जो वेट मेजरिंग मशीन है, सोनार के पास अलग लेवल की मशीन रहती है, जो एक पर्टिकुलर माइक्रो मतलब मिलीग्राम भी होगा, उसको भी मेजर कर लेगा। जबकि जो नॉर्मल रेडी वाला होते हैं उनके पास अलग टाइप की तराजू रहती है ना। तो दोनों लेवल पे देखा जाता है कि किस लेवल तक सुटेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी किस लेवल तक। तो वहां पे वो हाई क्वालिटी वेइंग मशीन को यूज कर रहा है, यहाँ पे लो क्वालिटी को यूज कर रहा है, क्योंकि उससे उसका काम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मशीन महंगी है। हाँ बोलो। तो मैं पूछ रहा हूँ एनसी मशीन में सर फिर डाटा हम कैसे फीड करते हैं इसमें बिना कंप्यूटर्स के सर, जैसे लेटर और सिंबल्स वगैरह वो सब करेंगे? पंच टेप आता है उसमें, पंच टेप आता है, ठीक है। अच्छा सर। मैं अभी सारे, जब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे ना तो उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पार्ट्स के बारे में आप पढ़ोगे कि सर क्या क्या पार्ट्स इसमें यूज किए जाते हैं,
होते सारे हैं, कंप्यूटर नहीं होता, लेकिन उसमें एक कंट्रोलर रहता है। अभी मैं आपको एक मिनट डायग्राम दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एनसी मशीन्स में ये MCU होता है, इसके अंदर देखो ये कंट्रोल पैनल होता है। कंप्यूटर कहीं नहीं होता, टेप रीडर पंच्ड टेप होता है और उसमें कहीं होल्स बने होते हैं, लाइट पास होती है तो वो लाइट देखते हैं कितने सेकंड बाद पास हो रही है, तो अलग से सिंबल्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये MCU है उसका, मशीन कंट्रोल यूनिट जिसको बोलते हैं। किस तरह, तो मशीन कंट्रोल यूनिट हम यूज करते हैं NC मशीन्स के अंदर। लेकिन जब हम कंप्यूटर CNC मशीन यूज करते हैं तो उसमें कंप्यूटर की जो CPU होता है वो उसका काम करता है। CPU में जो कंट्रोल यूनिट होती है वो उसका काम करता है। ठीक है, अभी तो हम यहाँ तक चल रहे हैं, ये हो गया, सुटेबिलिटी हो गई। नीड ऑफ NC सिस्टम आप देख लेना कि भाई नीड क्या है, रिजेक्शन कम करने, ये सारी चीजें। एडवांटेजेस ऑफ NC सिस्टम, नीड पढ़ रहे हैं आप लोग, मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, तो एडवांटेजेस तो आप एक पूछेंगे आप 1000 लिख देंगे, बहुत सारे लिख देंगे, एडवांटेजेस में कोई मतलब नहीं है, आप लोग लिख सकते हो। बेटर कंट्रोल हो जाएगा मशीन टूल्स, कटिंग टूल्स का, बेटर कंट्रोल्स ऑफ कटिंग टूल्स। फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हाई वॉल्यूम भी बना सकते हो, हाई क्वालिटी भी मेंटेन कर सकते हो, मीडियम वॉल्यूम मीडियम क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो। बेटर कंट्रोल हो जाता है जब आप अच्छे से सब टूल्स, क्योंकि टूल्स जो होते हैं न्यूमेरिकली कंट्रोल हो रहे हैं, आप मैनुअली कंट्रोल नहीं हो रहे तो गलती के होने के चांसेस कम रहते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप फिक्सचराइजेशन, कुछ कॉस्ट बढ़ती हैं ऑब्वियसली, कुछ कॉस्ट कम हो जाती हैं इसमें, तो फिक्सचर बार बार फिक्स नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली पहले से सब रहते हैं चीज़ें सेम उसमें, तो फिक्सराइजेशन कम हो जाता है। नॉन प्रोडक्टिव टाइम, जैसे मान लिया एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर मूव करना, या एक मशीन से दूसरे मशीन की ओर मूव करते हैं, चेंज ओवर टाइम जो होता है या सेटअप जो टाइम होता है वो घट जाता है। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव टाइम जो होता है, वर्क हैंडलिंग टाइम, ऑटोमेटिक टूल चेंज करना, ये सब चीजें, तो वो कुछ स्टेप खत्म हो जाते हैं उसके अंदर। इसके अलावा जैसे अगर मैं आपसे बात करूं सिंपली, एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्केल है, ठीक है, और एक नॉर्मल तराजू है। मैंने आपसे बोला कि बताइए भाई इसका साइज कितना है, मतलब ये आपको कुछ मान लीजिए सेब दिए, मैंने बोला इसका वजन कितना है, आपने एक बार रख दिया इलेक्ट्रॉनिक स्केल पे, उसने तुरंत बता दिया कितने ग्राम, इतने मिलीग्राम या इतना kg। जबकि आप तराजू से तोलोगे तो आप उसका एग्जैक्ट वेट नहीं मेजर कर पाएंगे, है ना। तो यही है, नॉन प्रोडक्टिव टाइम जो होता है वो कम हो जाता है, इसमें ह्यूमन एरर के चांसेस कम रहते हैं। एक बार पार्ट प्रोग्राम बन गया, सिमुलेट करके देख लो इजीली, अगर कोई गलती है तो उसको करेक्ट कर दो। ठीक है, दिस कैन परफॉर्म मशीनिंग ऑपरेशन एट सेवरल कन्वेंशनल मशीन्स साइमल्टेनियसली, एक साथ बहुत सारी मशीन्स पे आप काम से कर सकते हो। इसके अलावा एक्यूरेसी अच्छी रहती है, सेटअप टाइम कम हो जाता है, स्क्रैप के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, ग्रेटर एक्यूरेसी टू यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्टिविटी, सेटअप टाइम इज रिड्यूस्ड ऑब्वियसली, reduce scrap, the wastage of material is reduced because you are going to just have efficiently manage all the operations and close tolerance you have provided. Very simple, jigs and fixtures are very simple, direct labor reduction, accurate costings and scheduling, working piece handling, productivity will enhance, simple, easy to make change in design to create the product of good quality, precision, accuracy, so you will be getting all these things, and greater safety because all doors are closed. जब तक सारे डोर्स क्लोज नहीं होंगे तब तक आपकी मशीन चालू नहीं होगी. So these are some controls over there. That's why we can say this NC technology is very popular in the various industries. So someone can say why देखो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं. पहला तो ये बन सकता है राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ एनसी कंट्रोल सिस्टम या एनसी मशीन्स. एक और क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द वेरियस व्हाई एनसी टेक्नोलॉजीज या मैं आई कैन से एनसी टेक्नोलॉजीज आर वेरी पॉपुलर इन इंडस्ट्री, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. एक क्वेश्चन ये बन गया. तो जस्टिफाई करने का मतलब है कि क्यों यूज कर रहे हैं आप, बताओ किस किस तरीके से, ऐसे क्या इसके अंदर मतलब फीचर्स हैं, ऐसे क्या है इसके अंदर क्वालिटीज हैं, सो दैट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू यूज दीज प्रोडक्ट्स. सो दिस इज यू हैव टू राइट डाउन द एडवांटेजेस. ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा. अब डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, ऐसा तो है नहीं कि 2 रुपए में खरीद लोगे.
नॉर्मल तराजू मार्केट से खरीद के लाओ और हाई एक्यूरेसी वाली खरीद के लाओगे तो प्राइस है, सो कॉस्ट इज ऑब्वियसली अनदर फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस इज अ डिसएडवांटेजेस, कॉस्ट ज़्यादा होगी। ट्रेनिंग ऑफ मशीन ऑपरेटर्स, मशीन ऑपरेटर जो भी होगा नॉर्मल बंदा नहीं, उसको ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग की स्पेशल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। दूसरा पार्ट प्रोग्रामिंग, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट प्रोग्राम बनाना भी एक अलग काम है। डेंजर और लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मशीन और टेप और कंट्रोल सिस्टम। जो टेप रीडर होता है, टेप रीडर टेप क्या करता है, रीड करता जाता है, टेप को रीड करता जाता है और आउटपुट सिग्नल्स वगैरह जनरेट करता जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो डैग आते थे, है ना, कैसेट वाले, जिसमें रील भरी होती थी, आप घुमाते थे उस तरीके से, तो क्या होता था कि बीच में कहीं कहीं अगर थोड़ा स्पीड हो तो वो स्लिप भी कर जाते थे। तो बाई चांस मान लिया कि नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है और अचानक से जो टेप रीडर होता है वो टेप रीडर उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को रीड नहीं कर पाया, तो वो ऑपरेशन वहां से गायब हो जाएगा, वो ऑपरेशन गायब हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट वहीं पर डिफॉल्टेड हो जाएगा, मतलब वहीं पर आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिफेक्टेड हो जाएगा। तब जब टेप रीडर रीड नहीं कर पाएगा। टेप रीडर में मतलब सिंपली एक टेप मान सकते हो, एक पर्टिकुलर टेप मान सकते हो, उस टेप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं और जो टेप रीडर होता है वो टेप रीडर उस टेप को रीड करता जाता है और सिग्नल्स जनरेट करता जाता है। तो बाई चांस मान लिया कुछ जो होल्स होते हैं उनका अलग अलग डायमीटर रहता है, ठीक है, जो होल्स रहते हैं, हालांकि इसको अब खत्म कर दिया गया है, ये सिस्टम पहले यूज होता था एनसी सिस्टम, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें होता क्या था। तो बीच में मान लिया छोटे छोटे होल्स बना दिए, कोई छोटा होल बना दिया, कोई बड़ा होल बना दिया, कोई और बड़ा बना दिया, फिर छोटा बना दिया, तो इसके ऊपर टेप रीडर होता था, वो रीड करता था, इसमें लाइट मतलब गिरती थी, तो कितने टाइम तक लाइट कर रही है उसके हिसाब से वो सिग्नल्स जनरेट कर देता था। अब बाई चांस मान लिया कि टेप की चलने की स्पीड, अब देखो दो चीजें हैं, एक बात मैंने आपसे बोली कि नॉर्मली कोई टाइम आ रहा है अचानक से, या कोई प्रोडक्ट मान लिया 5 सेकंड में एक प्रोडक्ट आ रहा है, आप इसको इजीली उठा करके, जैसे मैं सिंपली एक कंडीशन एज्यूम करिए, आप एक जगह खड़े हुए हैं और एक आप बोल सकते हो कोई एक लाइन है, असेंबली लाइन है, आपका काम क्या है कि 5 सेकंड बाद एक प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट को हटा करके आपको रखना है, ठीक है। लाइन चल रही है, एक पर्टिकुलर लाइन चल रही है, आप एक जगह खड़े हो, मतलब ये लाइन चल रही है इस तरीके से और आप यहाँ खड़े हो, प्रोडक्ट यहाँ से आ रहे हैं और ये देखा कि 5 सेकंड बाद एक प्रोडक्ट आ जाता है, तो आप 5 सेकंड बाद उस प्रोडक्ट को आपको उठा करके दूसरी जगह रखना है, अगले 5 सेकंड बाद एक और आएगा, आपने उठा करके रख दिया। बाई चांस हुआ क्या, अचानक से जो आपकी असेंबली लाइन है उसकी स्पीड बढ़ गई और जो प्रोडक्ट पहले 5 सेकंड में आ रहा था वो 1 सेकंड में आने लग गया, ठीक है। तो क्या आप इस कंडीशन को मैनेज कर पाएंगे? मान लिया कुछ समय तक कर लेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई जो ये लिखा है, डेंजरस ऑफ लॉस इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मशीन्स इफ टेप और कंट्रोल माल फंक्शन। अगर ऐसा कहीं होता है तो प्रॉब्लम्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो भी टेप रीडर या अच्छे से रीड नहीं कर पाया या फिर आपका जो टेप है वो खराब हो गया, तो उस हिसाब से ये देखना पड़ता है कि कहीं देखिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। स्टिल यू आर हैविंग ए नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। चलिए, तो इतना है, बस इतना आप लोगों को डिस्कस करना है इसमें। बाकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस किस तरीके से एनसी मशीन्स का कंट्रोल, ये जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से डेवलप हुई, किस किस तरीके से अभी प्रेजेंट एरा में ये मशीन सारी हमारे पास अवेलेबल है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद किसने किसको यूज़ किया, ये सारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ एनसी सिस्टम्स आपको खुद से पढ़ना है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स, यू हैव टू डिस्कस दिस एट योर ओन, ओके। जापान यूएई किस किस तरीके से, फ्यूचर ट्रेंड्स ये भी आपको खुद से पढ़ना है कि फ्यूचर में एनसी मशीन्स क्या क्या फीचर्स आपको लगता है, क्या क्या चीज़ें ऑटोमेटेड फ्यूचर फैक्ट्रीज में मतलब इनका जो एनसी सिस्टम होते हैं उनका फ्यूचर में क्या यूज़ था, किस किस तरीके से हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो फ्यूचर एस्पेक्ट्स और फ्यूचर ट्रेंड्स यू हैव टू स्टडी एट योर ओन, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, नोट्स हैं। So I am not going to discuss in detail. Now I will be moving in the next lecture. I will be discussing the features of NC and CNC machine. CNC machines में भी पिक्चर में आएंगी और एक होता था DNC machine, DNC machines। तो CNC machines, NC machines के फीचर्स क्या हैं ये पढ़ेंगे और DNC machines, CNC machines क्या है, किस तरीके से काम करती हैं,
इन सब के बारे में भी डिटेल में हमें पढ़ना है, लेकिन वो आज नहीं पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो 2-3 टॉपिक मैंने छोड़े हैं आपको खुद से पढ़ने हैं। यू हैव टू प्रिपेयर द असाइनमेंट, आई विल सेंड यू द क्वेश्चन पेपर, आई विल सेंड यू the questions for the assignment and you have to submit this assignment at within the time. Okay, so I think तो ये वाला लेक्चर आज हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।